নেটটাও তো ঝোলা মাঝে সাঝে। ওকে, ঠিক আছে। আজকে স্ক্রিন ভিজিবল? Yes, ma'am. So this is the last topic of your 702. Okay, I've missed this topic actually. So the topic is what? Rainfall and runoff relationship using Khoslas formula or Khoslas theory. Okay, he has derived one equation which shows the relationship between rainfall and runoff. Okay, in the previous lecture also we have already found one relationship between this rainfall and runoff. Suppose this is your precipitation or rainfall. Okay, suppose P amount, yeah, or we can say P mm of rainfall is occurring over this catchment area, then your runoff will be equal to P amount of rainfall. मतलब कि P अगर P mm का अगर बारिश हो रहा है तो रन ऑफ जो होगा सरफेस रन ऑफ इट विल बी सेम अमाउंट, मतलब जितना बारिश हो रहा है उतना ही रन ऑफ होगा नहीं, देयर विल बी सम, yes, there will be some losses, right? Not only infiltration, evaporation, transpiration, right? There are several types of losses. ठीक है, तो यहाँ पे वही रिलेशनशिप को he will explain, खोसला has explained. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे रिलेशन किस चीज का है? रेनफॉल, रन ऑफ and losses. Okay, and here he has said we will learn what about Khosla's theory, then we will see what is the relation that he has derived and we will solve one example, small example. Okay, so Khosla theory, what happened? He has analyzed rainfall, runoff and temperature data. यहाँ पे ये वाला नया टर्म आ रहा है, ठीक है? अभी तक हम लोगों ने रेनफॉल, रनऑफ, इनका रिलेशनशिप विद लॉसेस ये सब भी हम लोगों ने देख लिया, बट टेम्परेचर का क्या है, राइट? इसका रिलेशन क्या होगा? दिस वी विल सी. ओके, यहाँ पे टेम्परेचर एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द लॉस. अब अगेन टेम्परेचर कौन सा लॉस के साथ रिलेटेड होगा? इन्फिल्ट्रेशन के साथ, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, या किस चीज के साथ होगा तुम्हारा टेम्परेचर का रिलेशन? इन्फिल्ट्रेशन के साथ होगा टेम्परेचर का रिलेशन? कैचमेंट एरिया का टेम्परेचर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन डिपेंड करेगा? नहीं. Temperature, it is we have already learned that factors affecting evaporation, transpiration or evapotranspiration, one factor was temperature, right? Temperature ज्यादा होने से ये losses भी ज्यादा होगा. So he has derived one equation or we can say one relationship between this loss and temperature, then उसको use किया है runoff और rainfall relationship develop करने में. Okay, so for that he has analyzed rainfall data, runoff data and temperature data for various catchment in India as well as in USA. Different जगह का catchment area के ऊपर इसने experiment किया, analysis किया, then he has derived an empirical relationship, okay, between rainfall and runoff. ओके, और जो भी टाइम पीरियड लिया है कि ये कितना दिन का रेनफॉल डाटा है, कितना दिन का रन ऑफ डाटा है, दैट इज ही हैज टेकन इट एज अ मंथ, फॉर अ मंथ, मतलब मंथली हिसाब में इसने ये एनालिसिस किया है, एनालाइज किया है. ओके, तो रिलेशनशिप जो डेवलप किया है इसने वो क्या है? फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये एम्पिरिकल है. ओके, ये याद रखना, बिकॉज ये सेवरल ट्रायल एरर या बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करके ये इन्होंने एक रिलेशनशिप डेवलप किया है. ओके, तो क्या है? फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द रिलेशन वी हैव टू फॉलो, दैट इज सी रन ऑफ will be equals to precipitation minus losses. जैसे कि यहाँ पे देखो, suppose this is the precipitation, okay, and this is the runoff, whereas losses अगर हम total loss L से denote करेंगे, then obviously पहले बारिश जितना भी आया पहले loss होगा, जितना भी बच जाएगा after loss it will be contributed to it will be contributed as a runoff. ठीक है, मतलब precipitation is summation of what? Losses plus runoff. Okay, so your runoff R will be what? Precipitation minus losses. मतलब जितना बारिश हो रहा है after loss जो भी बचेगा that is your runoff. So runoff is R is equals to P minus L. Okay, अब L यहाँ पे क्या है? As per Khosla's theory, L और एक रिलेशन ये है कि if precipitation या हम लोग बोल सकते हैं रेनफॉल इज लेसर देन और इक्वल टू लॉस, देन योर रन ऑफ विल बी जीरो.
ठीक है, मतलब कि जितना बारिश हो रहा है, ठीक है, वो अगर लॉसेस से बहुत कम है, सपोज 10 mm का बारिश हो रहा था और उस कैचमेंट एरिया से लॉसेस है 20 mm, तो वो रन ऑफ में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब ऊपर से बारिश कितना आ रहा है, 10 mm का बारिश आ रहा है, ठीक है, और कैचमेंट एरिया में जाके लॉसेस क्या हो जा रहा है, उसका लॉस कितना है 20 mm। ऊपर से बारिश आ रहा है 10 mm, लॉसेस है 20 mm, तो रन ऑफ कंट्रीब्यूट होगा, तो रन ऑफ जनरेट होगा, सरफेस रन ऑफ होगा। हेलो, আছো তো নাকি? হ্যাঁ ম্যাম আছে। बोलो, যদি प्रेसिपिटेशन, अगर प्रेसिपिटेशन इज लेसर देन योर लॉस, मतलब जितना बारिश हो रहा है और जितना लॉस हो रहा है, अगर बारिश इज वेरी लेस देन द लॉसेस, देन उसमें रन ऑफ रन হবে ऑफ, না ম্যাম। बारिश तो सब तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन होके नीचे चला गया या इवापोरेशन होके इवापोरेट हो गया, राइट, रेन वाटर, तो रन ऑफ में कैसे जाएगा तुम्हारा जमीन, इट विल बी सूखा ओनली, राइट, इट विल बी ड्राई ओनली, देयर विल बी नो सरफेस रन ऑफ। सो फॉर दैट केस ओनली ये वाला रिलेशन इन्होंने डिराइव किया था, ओके, दिस वन, ओके। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग रन ऑफ, ये क्या था, फॉर अ मंथ, मतलब हम लोग ये आर का वैल्यू क्या है, मंथली लेंगे, एंड वी नो एनुअली अगर रन ऑफ चाहिए तो क्या करेंगे, वी विल जस्ट सिंपली सम अप दिस आर वैल्यू, ओके। तो आर कैलकुलेट करने का ये वाला फंडा है, ओके, ये दोनों याद रखना है, ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा कंडीशन याद रखना है, ओके। व्हेन 4.5 से ज्यादा टेम्परेचर, दिस इज द रिलेशन, ठीक है, आर का वैल्यू, अगर P इज लेस देन लॉसेस, देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, देखो P इज लेस देन लॉस, यू विल गेट R एज अ नेगेटिव, तो नेगेटिव कभी नहीं होता है रन ऑफ, ओके। सो either we have to take the positive value of R or we have to take the zero value, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, अगर नेगेटिव आ रहा है तो we will take the loss as run off as zero, ठीक है। तो वैसे फॉर मंथ, हर एक मंथ का हम रन ऑफ कैलकुलेट करेंगे, देन we will sum up to get the annual run off, okay। So यहाँ पे क्या है, R is what, monthly run off in millimeter, in this formula it is in millimeter, okay, and your R should always be either greater than 0 or equals to 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए R का वैल्यू। P क्या है, मंथली रेनफॉल इन मिलीमीटर, मतलब प्रेसिपिटेशन जो है, L इज मंथली लॉसेस इन मिलीमीटर, एंड दिस इज अ फॉर्मूला, ये जो बोला ना टेम्परेचर के साथ लॉसेस का कैसा रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन, loss is equals to, again this is an empirical formula, okay, loss is equals to 4.811 into T, where T is the mean monthly temperature of the catchment। हम मंथली हिसाब में करें तो ये टेम्परेचर भी एक एवरेज टेम्परेचर है, मंथली टेम्परेचर, ठीक है, जैसे जनवरी मंथ का एवरेज टेम्परेचर कितना है इन डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दिस लॉस अगेन सिंस यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन लॉस को इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, ही हैज कंसिडर्ड दिस लॉसेस एज पर द इवापोट्रांसपिरेशन, लॉसेस ड्यू टू इवापोट्रांसपिरेशन, मतलब इवापोरेशन और जो प्लांट से होके जाएगा दोनों का समेशन इज इवापोट्रांसपिरेशन, ओके। ऊपर से बारिश हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, अब लॉसेस मिट के जो बचा हुआ बारिश का पानी है, इट इज कंट्रीब्यूटेड टू द रन ऑफ, ओके। So this is the main funda. I think this is clear. तो इसका खोसला का यही इतना ही फंडा है, okay. Now we will go to the sum. Yeah, we can say we will go to the problem. Problem थोड़ा करना पड़ेगा, okay. Easy है, let us do. See क्या बोला है. For a catchment in UP, India, the mean monthly rainfall. ये देखो mean monthly rainfall. ये month wise rainfall data collect किया है. Okay, this is the mean monthly rainfall in centimeter, okay, and the temperature, again this is what, this is mean monthly temperature for January, mean monthly temperature for February in degree centigrade, okay. Calculate the annual runoff by Khosla's formula, मतलब वो जो पिछले वाले में जो भी empirical formula, we have to use those formulas, okay. So ये criteria हमको याद रखना है, these two conditions, and इन सब में ये PR क्या है ये हमको पता है, and ये वाला भी relation रखना है, L ये वाला, ओके, L इज इक्वल टू 4.811 कैपिटल T। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर्स और मंथली टेम्परेचर्स आर ग्रेटर देन 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तब रेनफॉल का रन ऑफ का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, P माइनस L, ओके, P माइनस L फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके।
बट यहाँ पे R शुड बी इन मिलीमीटर, P शुड बी इन मिलीमीटर, L शुड बी ऑल्सो इन मिलीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में है. सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस डाटा. दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये R है ना P है, ये वाला रेनफॉल. इसको किससे डिनोट करेंगे इन दिस इक्वेशन, R या P? रेनफॉल इज डिनोटेड बाय R और P? P या प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल, राइट. सो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देना है पहले. ओके, दैट मीन्स दिस विल बी, P विल बी 40 फॉर जनवरी, फरवरी के लिए 40, 20, 0, 20, 120 ऐसा. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू. अब हमको ये कन्वर्ट कर दिया, देखो 4 था, 2 था, 0 था, ऐसा था. ठीक है, तो दिस इज इन मिलीमीटर. तो नाउ व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप? हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको रन ऑफ कैलकुलेट करना है, राइट. सी, R कैलकुलेट करना है एंड वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में तुमको P पता है. ओके, वी नीड टू कैलकुलेट L. नाउ फॉर कैलकुलेटिंग L, हाउ वी विल कैलकुलेट L यूजिंग दिस डाटा? कैसे आएगा बोलो? L का वैल्यू क्या है? L का फॉर्मूला क्या था? L इज इक्वल्स टू 4.811 कैपिटल T, where T is the temperature in degree centigrade. ये वाला डिग्री सेंटीग्रेड में है. ठीक है, तो फॉर जनवरी मंथ what will be the value of L? बोलो तो. For January month, what will be the value of L? Anyone? Losses क्या होगा? Losses is due to evaporation, evapotranspiration. Again, evapotranspiration किस वजह से होता है? टेम्परेचर की वजह से है. So loss and temperature are related using this equation. देखो L is equals to 4.811 T. तो बोलो क्या होगा फर्स्ट केस में? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L, कैपिटल L फॉर जनवरी? 58.572 rms. 4.811 into 12 which is 57.73, right? ऐसा आ रहा तो Ma'am, 58.57 rms. 57 ये तो 4.811, ठीक है, into जनवरी मंथ का टेम्परेचर 12, 16 Ma'am, it is. फरवरी का क्या होगा फिर? 4.811 into 16. ठीक है, तो कैलकुलेट कर देना है टेम्परेचर, ये सब है कॉरेस्पॉन्डिंग. तो देखो 57.7, 77, 101 ऐसा आ रहा है. नाउ व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? एनी आइडिया? यू गॉट P. हमको क्या कैलकुलेट करना है? यूजिंग खोसलास फॉर्मूला, कैलकुलेट रन ऑफ विच इज R. एंड रन ऑफ, हाँ, प्रेसिपिटेशन एंड लॉस के बीच में रिलेशन क्या है? P माइनस L, राइट. सो दिस माइनस दिस विल गिव यू व्हाट? रन ऑफ. ओके, तो कैलकुलेट करने से क्या हो रहा है? दिस माइनस दिस क्या आ रहा है? ये क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अगेन सी दिस माइनस दिस नेगेटिव. ठीक है, तो रन ऑफ हम लोग कौन सा यूज करेंगे फॉर दिस 4 केसेस? सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7. इन दिस केस योर नेगेटिव आ रहा है, मतलब P इज लेसर देन L. ओके, सो हम ऑलरेडी जानते हैं रन ऑफ शुड बी पॉजिटिव या इक्वल टू 0. इट शुड नॉट बी नेगेटिव. So in this case for January month run off का वैल्यू क्या होगा? जनवरी मंथ के लिए रन ऑफ का वैल्यू क्या होगा? 0. सिमिलरली इसका भी 0, ये भी 0. ठीक है, सो इसके केस में ये 0 है, तो बाकी का भी 0 है. नाउ व्हाट अबाउट दिस केस? इसमें क्या हो जाएगा? फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर R का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब P माइनस L ही रहेगा, राइट. सो इन दिस केस योर R वैल्यू विल बी P माइनस L ओनली, मतलब जो आया वही रहेगा, पॉजिटिव. ठीक है, अगेन इस यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंस दिस इज R का वैल्यू नेगेटिव है, सो इट विल बी अगेन 0. ठीक है, सो यार ये जनवरी मंथ का 0 है, फरवरी का 0 है, ऐसे ऐसे करके देखो पूरा मंथ का टोटल रन ऑफ ये है, इंडिविजुअल रन ऑफ ये है. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या है? एनुअल रन ऑफ. सो एनुअल रन ऑफ कितना होगा? जनवरी में 0 है, 0 रन ऑफ क्रिएट हुआ, फरवरी में 0, जुलाई में 170, 50, कितना आएगा फिर? व्हाट शुड बी द एनुअल रेनफॉल, सॉरी एनुअल रन ऑफ? যোগ করতে হবে. তো কত আসছে?
346. So Point the 63. annual runoff will be summation of all the monthly runoff. Okay, 346.63. तो ये वाला प्रॉब्लम तुम लोग का बचा हुआ था, तो आज के लिए यही हम करने वाले थे. ओके, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है. एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रीवियस मतलब क्या बोलते हैं असाइनमेंट? किसी का कुछ डाउट था, क्लियर पूछा है, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला अभी तक. कॉपी पेस्ट कर रहा है क्या? 703C में एक प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम है. एनीवन हैव नोटिस्ड? Yes, ma'am. apart from Pratik, क्या शेख मीना, मनीरुल शेख एंड पुलक, बाकी रखी क्वेश्चन है কিছু প্রবলেম খুঁজতে পেয়েছো 703C তে? তারা তো জিজ্ঞেস করে। না ম্যাম, এখন আমি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে। বলো। ম্যাম, আমরা যে এত অ্যাসাইনমেন্ট দিই বা পরীক্ষা দিই, সবাই কি সব অ্যাসাইনমেন্ট সব সাবমিট করে দেয়? করে না তো, তার জন্য এটা ম্যান্ডেটরি করেছি। ম্যাম, যারা করে না তাদের কি করেন? তাদেরকে কি করেন মানে? মানে তাদেরকে নাম্বার দেন? তাদেরকে তো আমরা তো সেই হিসাবে তো দিচ্ছি না। আমি তো অ্যাটলিস্ট চেক করি মানে আমি ওই হিসাবে ওটা বসাই মার্কস। এখনো ম্যাম দেখিনি খুলে, প্রবলেম হলে জানাবো। ওখানে একটা প্রবলেম কিছু না, ওখানে একটা ডাটা মিসিং আছে, ঠিক আছে? ও আচ্ছা, ঠিক আছে। সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। প্রতীক কালকে জিজ্ঞেস করেছিল, আজকে শেখ মনিরুলও জিজ্ঞেস করেছে, পুলক হয়তো বুঝে গেছে, সিমনও হয়তো দেখেছে, কিন্তু বাকিদের আমি সেটাই জিজ্ঞেস করলাম। পুলক ম্যাম একদম ওয়ার্ল্ডের লেজেন্ড আছে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে এইটুকুই থাক। ওকে, ডাউট থাকলে জিজ্ঞেস করো রিগার্ডিং मतलब যা কিছু ডাউট আছে। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am. ওয়েলকাম।